bow down to the greatest thief who stole the heart of Sri Radhika, whose complexion is like fresh rain cloud, who steals everything from those who take shelter at his feet. Sri Radhikaya Hridayasya Choram Navambudasyamalkanti Choram Sri Radhikaya Hridayasya Choram Navambudasyamalkanti Choram Padashritanam cha samasta choram Chauragraganyam purusham namami Who is that dreadful thief who makes those who surrender at his feet utterly destitute, who turns them into beggars, wandering onto the path without a home or wealth? Who has ever seen or heard of such a thief in 3 worlds? Akinchani kritya padashritam ya karoti bhikshum pati gehadinam Even the mere utterance of his name steals mountains of sins without remainder. Such a wonderful thief. Have I seen him or heard of any like him? Yadiyanamapi haratya shesham girikasaranapi paparashe Asharya rupo nanu chorayete drishta shruto manamaya gadati Asharya rupo nanu chorayete drishta shruto manamaya gadati. You have stolen my wealth, my honor, senses, and even my life. Where will you run, O thief? Today I have caught of you firm with the rope of devotion. You are bound by my rope of loving devotion. Dhanam cha manam cha tathendriyani pranam sharidva mama sarvameva Dhanam cha manam cha tathendriyani pranam Palayase putra dhrito adya chora tam bhakti damnasi maya niruddha Palayase putra dhrito adya chora tam bhakti damnasi maya niruddha. You cut the dreadful noose of Yama. You break the terrible bondage of material existence. You cut all the bonds of everyone, yet never the bond created by your devotee. Chinasi chora pashabandham Dhinasi bhimam bhava pashabandham Chinasi choram yamapashabandham Dhinasi bhimam bhava pashabandham Chinasi bhoram yamapashabandham Dhinasi bhimam bhava pashabandham Chinasi choram
O thief, O Hari, you have bound me in the terrible prison of my mind, full of darkness and misery. Please accept now, forever, the punishment of proper for the crime of stealing me. मनमानसेता मत्सराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धा लभस्व हे चोर हरे चिराय स्वचोर्यदोषोचितमेव दण्डम् लभस्व हे चोर हरे चिराय स्वचोर्यदोषोचितमेव दण्डम् Please remain forever in the prison of my heart, bound firmly by the rope of my devotion. O Krishna, O greatest thief, even across millions of cosmic dissolutions, I will never release you from my heart. व्रजप्रसिद्धं नवनीतचोरं जदुकुलचोरम् व्रजप्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां जदुकुलचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचोरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare मद्भक्तिपाशदृढबन्धननिश्चलः सन् त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्वचारहृदयं महित्वपोचयामि श्री चौराष्टकम की, श्री बिल्वा मंगल ठाकुर की, श्रील प्रभुपाद की। तो इस साल का ये आखिरी चौराष्टकम हम सबका साथ में था। इसके बाद होपफुली अगले 4 साल बाद वापस हम लोग सब साथ में गाएंगे। ऑफ कोर्स आप लोग तो गा ही सकते हैं, मंदिर में भी हर दिन वो गई, बट आवर फैमिली टुगेदर इज द लास्ट चौराष्टकम। So we'll have some discussion, starting with prayers. Om Gyantimirandhasya Gyananjanashalaakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Very happy to see everyone's fresh faces, early morning fresh faces. और ये फ्रेशनेस के पीछे एक राज भी है कि आप लोगों ने इतनी तपस्या की है। रात में सोए कि नहीं पता नहीं, बट मैं नहीं जानना चाहता था, बट सोए भी होगे तो बहुत कम सोए होगे। ऐसा रहता है कि जब हमें तत्परता रहती है किसी चीज़ को प्राप्त करने की तो मन नहीं लगता, खाने में मन नहीं लगता, सोने में मन नहीं लगता। तो आई थिंक राधा वृंदावन चंद्र ने आपकी नींद उड़ा दी कल रात की। तो एक्चुअली ये जो सुबह वाला हमारा जो ये प्रोग्राम है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इवन भगवान की जो वृंदावन लीला है, चाहे वो आप भौम वृंदावन की बात करें या गोलोक वृंदावन की बात करें, उसमें भगवान अलग अलग अपने श्रेणी के जो भक्त हैं, जो अपने अलग अलग रस में भक्त उनकी सेवा करते हैं, उन सबके लिए भगवान के पास अलग अलग टाइमिंग है। ओके, सबको अलग अलग टाइमिंग डेडिकेट किया है भगवान ने। और बाकी का जो टाइमिंग रहता है उसमें वो लोग विरह में रहते हैं भगवान के। कब हमें कृष्ण मिलेंगे, कब कृष्ण के दर्शन होंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया था, जब दर्शन खुलता है तो हम लोग सभी दंडवत प्रणाम करते हैं, राइट।
तो ये दंडवत प्रणाम हम लोग मैकेनिकली करते हैं, हम लोग डेलिबरेटली करते हैं, लेकिन भगवान के जो नित्य पार्षद हैं वो जब भगवान को देखते हैं, भगवान को देख के उनका हृदय इतना गदगद हो जाता है कि नेचुरली क्या होता है, नेचुरली दे फॉल इन लव विद कृष्णा, दे लिटरली फॉल, राइट। तो हमारे हृदय में वो आ नहीं रहे, इसलिए हम लोग एटलीस्ट आर्टिफिशियली हम लोग एटलीस्ट गिर रहे हैं भगवान को अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए कि वी ऑल्सो वांट टू फॉल जस्ट, वी ऑल्सो वांट टू फॉल इन लव। तो हमारी इच्छा को देख के भगवान फिर हमें कृपा देंगे एंड देन वी कैन एक्चुअली फॉल इन लव विद कृष्णा। तो कोई बता सकते हैं भगवान ने अपने जो गोप सखा गण हैं उनके लिए कौन सा टाइम डेडिकेट किया होगा पूरे दिन भर में से? चलो ऑप्शंस भी दे देता हूँ, MCQ, इसका स्कोर ऐड नहीं होगा, क्यूमुलेटिव। सो अर्ली मॉर्निंग टाइम ऑप्शन ए, डे टाइम ऑप्शन बी, इवनिंग टाइम ऑप्शन सी, डी इज नाइट टाइम। कौन कौन बोलता है अर्ली मॉर्निंग टाइम? अर्ली मॉर्निंग टाइम बोल रहा हूँ मैं। कौन कौन बोलता है डे टाइम? गोप सखागण के लिए बोल रहा हूँ मैं। कौन कौन बोलते हैं इवनिंग टाइम? कौन कौन बोलते हैं नाइट टाइम? अरे बाप रे, नाइट टाइम ये आप लोगों के दोस्ती की बात नहीं चल रही है, कृष्ण के निर्णय की बात चल रही है। यहाँ पे पूरा रस उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो भगवान ने अपने गोप सखागण के लिए डे टाइम रखा है, क्योंकि डे टाइम में सब लोग जाते हैं वन में गाय चराने के बहाने से, और वहां पे जाके फिर सभी आपस में खेलते हैं। सो डे टाइम इज फॉर गोप सखागण, एंड फॉर पेरेंट्स इवनिंग टाइम, एंड फॉर सर्वेंट्स जो दास्य रस में है सर्वेंट्स तो वैसे भी जब भी कृष्णा घर पे रहते तो सेवा करते ही हैं, बट इवनिंग नाइट टाइम इज फॉर वात्सल्य रस डिवोटीज एंड दास्य रस डिवोटीज। तो अर्ली मॉर्निंग टाइम किसके लिए बचा फिर? स्विम डिवोटीज के लिए। अर्ली मॉर्निंग टाइम किसके लिए बचा? हाँ, शर्माइए मत, बोलिए। जो भक्त माधुर्य रस में भगवान की सेवा करते हैं उनके लिए अर्ली मॉर्निंग टाइम है, क्योंकि कृष्ण जो हम लोग अभी सुबह सुबह जो भगवान को उठाए, तो कृष्ण अपने घर में नहीं उठते। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अपने घर में भगवान उठते हैं 7:30 बजे, जो हमारा श्रृंगार दर्शन होता है। श्रृंगार दर्शन मीन्स कृष्णा एट नंदा भवन, एंड 4:30 वाला जो दर्शन है दैट इज कृष्णा इन क्या बोलते हैं उसको, सेवा कुंज और निधिवन, और बेसिकली इन रासस्थली। और फिर वहाँ से फिर जल्दी से उठ के फिर घर में दौड़ के आते हैं, फिर घर में वापस हो जाते हैं। एंड देन सुबह 7:30 बजे ऐसे उठते हैं जैसे किसी को पता ही ना चला हो कि रात में कहीं और थे। तो इसीलिए ये जो 7:30 बजे वाला जो दर्शन रहता है दैट इज ऑल्सो वेरी स्पेशल ऑफ कोर्स, बट दैट इज फॉर एवरीवन, वो सभी के लिए है। लेकिन जो अर्ली मॉर्निंग वाला दर्शन है दैट इज ओनली फॉर वेरी इनर सर्कल डिवोटीज, ओनली फॉर वेरी क्लोज डिवोटीज। इसीलिए सुबह सुबह इतने लोग आ भी नहीं पाते ना, तो आप लोग भगवान के इनर सर्कल में ऐड हो गए आज। डर तो नहीं लग रहा है किसी को? अर्ली मॉर्निंग टाइम में आके, इसलिए बहुत सारे मंदिर हैं वृंदावन में भी जो कि 7:30 बजे खुलते हैं, जिनका पहला दर्शन 7:30 बजे होता है। लेकिन इन इस्कॉन वी वेक अप लॉर्ड बिफोर 4:30 ओनली। ओके, सो हमने ये जो अभी चौराष्टकम गाया उसमें हम डिस्कस कर रहे थे पिछले कुछ सेशंस में कि भगवान क्या क्या चुराना पसंद करते हैं, राइट? तो उसमें हमने अलग अलग चीज़ें डिस्कस की। तो वो अभी पार्ट हो गया है, अभी फर्स्ट पार्ट हो गया कि ऑलमोस्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या मेंशन, अभी हमने पिछले सेशन में क्या क्या देखा, भगवान क्या क्या चुराते हैं? मक्खन चुराते हैं, गोपियों के वस्त्र चुराते हैं, और अनेक जन्म के पाप चुराते हैं, और राधा रानी का हृदय चुराते हैं।
तो अभी हम देखेंगे भगवान और क्या चीज चुराते हैं। कोई बता सकते हैं और क्या चीज चुराते हैं भगवान? देख लीजिए, ओपन बुक एग्जाम है, ओपन बुक टेस्ट। उसके पहले और एक चीज चुराते हैं। हमने सेशन का नाम क्या रखा है आज का? ब्लू बॉय, मिस्टीरियस ब्लू बॉय। थोड़ा हिंट दे दिया मैंने। His complexion is like a fresh rain cloud। तो हिडन है वो, डायरेक्टली नहीं बताया है। तो इन्होंने जो रेन क्लाउड है, फ्रेश रेन क्लाउड, उसकी कांति भी चुराई है, राइट? दैट्स व्हाई his complexion is like that। नवाम बुध श्यामल कांति चौरम, उसमें इंग्लिश में एग्जैक्टली ट्रांसलेट नहीं किया है, बट अगर आप संस्कृत देखते हैं तो नव अम्बुद, राइट? अम्बु मतलब क्या होता है? अम्बू, हमको जम्बू पता है सर, जामुन। अम्बू मतलब पानी, पानी को अम्बू बोलते हैं। अम्बुद जो पानी देता है, कौन पानी देता है? वेटर? बादल, राइट? तो बादल को अम्बुद बोलते हैं। नव अम्बुद मतलब फ्रेश रेन क्लाउड। तो फ्रेश रेन क्लाउड का नव अम्बुद श्यामल, श्यामल मीन्स श्याम रंग। श्याम रंग मतलब श्याम का रंग, कृष्ण का रंग। तो कृष्ण का रंग क्या है? ब्लू है। और कुछ? ब्लैक? गलत जवाब। ना ब्लू है, ना ब्लैक है, ना सांवला है। कृष्ण का रंग है ब्लूइश ब्लैकिश, या फिर हम उसको एक अगर वर्ड में कंबाइन करें तो ब्लू ब्लैकिश। ब्लू ब्लैक नहीं है, अगर आपने ब्लू ब्लैक बोला मतलब गलत जवाब। ब्लू ब्लैकिश है, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों के मिक्सचर जैसा है। इश, इश लगा देना आखिरी में। इश मतलब नॉट एग्जैक्टली ब्लू ब्लैक बट लाइक ब्लू ब्लैक। क्योंकि कृष्ण का जो रंग है वो क्या हम इस भौतिक संसार के रंगों में हम उसको वो कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं? नो। कृष्ण का एक्चुअली जो रंग है वो किसी को नहीं पता, वो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हिज कॉम्प्लेक्शन इज ट्रांसेंडेंटल, स्पिरिचुअल है। बट कौन सा रंग क्लोजेस्ट आता है उनके कॉम्प्लेक्शन से? दैट इज ब्लूइश ब्लैक, राइट? जैसे इसको बोलते हैं शाखा चंद्र न्याय, संस्कृत में व्याकरण में बोला जाता है। जैसे अगर कोई माँ है, उसको अपने बच्चों को बताना है कि वो देखो चंद्रमा है, ऐसे बताना है, ठीक है? तो बच्चा देख रहा है, उसको कहीं पे समझ में नहीं आ रहा कहाँ है चंद्रमा, उसको सारे तारे भी चंद्रमा जैसे ही लग रहे, उसको पता ही नहीं ना चंद्रमा क्या होता है। तो माँ क्या बोलेगी कि वो देखो वो एक पेड़ की टहनी है, कोई देख नहीं रहा, वो एक पेड़ की टहनी है, वो दूसरी टहनी है, और उसके बीच में जो दिख रहा है, दिन में तारे दिखा रहा हूं आपको वो दो टहनी के बीच में जो दिख रहा है उसको बोलते हैं चंद्रमा। समझ गया सभी को? अभी वो चंद्रमा उन दोनों टहनी के बीच में है क्या? नहीं, बट समझने के लिए हम वैसा बोल रहे हैं। वो चंद्रमा तो बहुत दूर है, जिसको बोलते हैं शाखा चंद्र न्याय, मतलब ऐसी चीज जिसको हम समझ नहीं सकते उसको ऐसे समझाना कि कुछ हद तक हम थोड़ा समझ पाए उसको, हमारे रिलेटेबल फॉर्म में उसको समझाना। तो इसी प्रकार से कृष्ण का रंग हमें नहीं पता, बट दैट इज द क्लोजेस्ट रिजेम्बलेंस, ब्लूइश ब्लैकिश, राइट? तो स्पेशली आज हम इस ब्लूइश मिस्टीरियस फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड स्पेशली समहाउ भगवान हर बार हमें हमारे साथ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो एकदम परफेक्ट मैच होता है कॉन्टेक्स्ट के साथ। ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था, लेकिन अभी जो हम डिस्कशन करने वाले हैं ब्लूइश ब्लैकिश फॉर्म के बारे में, दैट इज एट अ वेरी अप्रोप्रिएट टाइम। कोई बता सकते हैं क्यों? हाँ, बिकॉज अभी अगले ही हफ्ते में जगन्नाथ स्नान यात्रा का बहुत बड़ा महोत्सव है। सो वेरी नाइस, राइट? एकदम परफेक्ट टाइम पे वी आर हैविंग दिस डिस्कशन। सो स्नान यात्रा जो है फेस्टिवल, आप लोगों ने पहले सुना है स्नान यात्रा फेस्टिवल? नाम सुना है एटलीस्ट? नहीं सुना? किस किसने सुना है?
कुछ लोगों ने सुना है, कुछ लोगों ने नहीं सुना है। किस किस ने देखा है स्नान यात्रा फेस्टिवल? हाँ, लाइव मतलब वहाँ पे रह के देखा है? यूट्यूब आपने भी रह के देखा है? यस, वेरी गुड। मैंने भी रह के देखा है उधर। वेरी अमेजिंग फेस्टिवल। तो ये जो फेस्टिवल है ये क्यों मनाया जाता है? क्या हुआ था इस दिन? अरे सिर्फ देखा है। माय वी डू व्हाट वी डू अटेंड नहीं किया था ना उससे पहले, इसलिए। तो इस दिन भगवान का अपीयरेंस हुआ था। सो इट्स लाइक अपीयरेंस डे ऑफ जगन्नाथ, लॉर्ड जगन्नाथ। जैसे यहाँ पे भी जन्माष्टमी होती है, कोई भी अपीयरेंस डे रहता है तो उसमें भगवान का अभिषेक किया जाता है। तो उसी प्रकार से जगन्नाथ जी का भी अभिषेक होता है उसमें, दैट इज स्नान, इसलिए स्नान करते हैं। तो जगन्नाथ जी का सब कुछ एकदम यूनिक रहता है, अलग ही रहता है, एकदम अलग ही उनकी क्या बोलते हैं, स्वैग है उनकी सारे भगवानों में भी, क्योंकि जगन्नाथ है ना, जगत के नाथ। अभी आप लोग बोलोगे कि जगन्नाथ तो कृष्ण भी है, कृष्ण इज ऑल्सो जगन्नाथ, राम इज ऑल्सो जगन्नाथ, अल्टीमेटली वही नाथ है। लेकिन उसमें से भी जगन्नाथ जो है, ही इज रियली जगन्नाथ, ही इज स्पेशली जगन्नाथ। कैसे वो हम देखेंगे अभी डिस्कशन में। तो थोड़ा सा हम तत्व पे भी जाएंगे। तो ये जनरली लोगों को भगवान का क्या डेफिनेशन पता रहता है? भगवान मतलब जो क्या 3 कार्य करते हैं, और कुछ लोग इसको एक्रोनिम में बनाते हैं, गॉड, GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो सृष्टि, स्थिति, प्रलय। तो जो सृष्टि करते हैं संसार की, जो स्थिति जो मेंटेन करते हैं, क्रिएटर, मेंटेनर, एंड प्रलय, डिस्ट्रॉय, जो डिस्ट्रॉय करते हैं, दैट इज गॉड। बट गॉड के पास बहुत दूसरे भी इंपॉर्टेंट कार्य हैं। यही उनके लिए इंपॉर्टेंट कार्य नहीं है कि जनरेट करते रहो, क्रिएट करते रहो, डिस्ट्रॉय करते रहो। तो भगवान का मेन कार्य क्या है? एंजॉय करना, वेरी गुड और अपने भक्तों को एंजॉयमेंट देना नित्य धाम में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो एक्चुअल में अल्टीमेट भगवान कौन है? कृष्ण। और वो ये सब नहीं करते, छोटे मोटे काम नहीं करते, ब्रह्मांड बनाना, डिस्ट्रॉय करना, छोटा मोटा काम है उनके लिए। मक्खन चुराना मेन काम है, राइट? उसके लिए स्ट्रैटेजीज बनाना, राइट? दैट रिक्वायर्स मोर इंटेलिजेंस देन क्रिएटिंग दिस वर्ल्ड। तो ये जो काम है, ये भगवान ने डेलीगेट कर दिया है अपने कोऑर्डिनेटर्स को, मैनेजर्स को। खास करके उनके 3 गुण अवतार हैं। भगवान के अलग अलग प्रकार के अवतार होते हैं, लीला अवतार, गुण अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार। तो उसमें से एक कैटेगरी रहती है जिसको बोलते हैं गुण अवतार, जो 3 गुणों को संचालित करते हैं। यू शुड अंडरस्टैंड कि वो उस गुण में नहीं है, लेकिन वो उनको संचालित करते हैं। क्योंकि अगर वो उस गुण में रहेंगे तो उसको संचालित नहीं कर पाएंगे, राइट? जो संचालन कर रहा है, जो कंट्रोल कर रहा है, उसको परे होना चाहिए, देन ओनली दे कैन कंट्रोल। तो तमोगुण का कौन संचालन करता है? नहीं पता, शिव जी। तो हमें समझना चाहिए शिव जी तमोगुण में नहीं है, शिव जी उससे परे हैं। शिव जी शुद्ध सत्व गुण में है, लेकिन वो एज अ सेवा तमोगुण का संचालन करते हैं। वैसे ही जो सत्वगुण है, सत्व नहीं, रजोगुण जो है, उसका संचालन कौन करते हैं? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी इसलिए इस दुनिया को क्रिएट करते हैं, और शिव जी क्या करते हैं? प्रलय, डिस्ट्रॉय करते हैं। तो स्थिति कौन करता है? स्थिति मतलब मेंटेन कौन करता है? मुझे कृष्णा वर्ड सुनाई दिया इसको, विष्णु, राइट? गलत जवाब। इस पूरे दुनिया को जो मेंटेन करते हैं, दैट पर्सन इज जगन्नाथ। So जगन्नाथ इज द मेंटेनर ऑफ दिस वर्ल्ड। ऑफ कोर्स विष्णु सही है, ये वही है अल्टीमेटली, बट कुछ लोग डाउट से देख रहे थे मुझे, कुछ तो अलग ही बता दिया। तो विष्णु के ही जो स्पेशली जो विष्णु का फॉर्म है, दैट इज मेंट फॉर मेंटेनिंग दिस वर्ल्ड, दैट फॉर्म इज जगन्नाथ। नॉट एग्जैक्टली जगन्नाथ, बट समवेयर रिलेटेड टू जगन्नाथ। बट इसीलिए जगन्नाथ जी को जगन्नाथ बोला जाता है, क्योंकि वो जगत को मेंटेन कर रहे हैं। मेंटेन करने वाले को क्या बोलते हैं?
नाथ, स्वामी, राइट। तो ऐसे ही नाम नहीं दे दिया है, बहुत पर्टिकुलर उसका रीजन है, क्योंकि वो जगत को मेंटेन कर रहे हैं, इज अ मेंटेनर, दैट्स व्हाई ही इज जगन्नाथ, जगत के नाथ। लेकिन एक्चुअल में जो फॉर्म है, एक्चुअल में जगन्नाथ वाला जो फॉर्म है जो हम देखते हैं मंदिर में, वो एग्जैक्ट फॉर्म नहीं है जो मेंटेन करता है इस दुनिया को। एग्जैक्ट फॉर्म का एक अलग नाम है। किसी को पता है उस फॉर्म का नाम क्या है? Who was जगन्नाथ बिफोर ही बिकेम जगन्नाथ? हाँ, नील माधव। सुना है कभी नाम? यस। तो जो नील माधव है, ये विष्णु का वो फॉर्म है जो कि इस दुनिया को मेंटेन करने वाले फॉर्म है, और ये फॉर्म सतयुग से एग्जिस्ट कर रहा है। जगन्नाथ तो बाद में आए, जगन्नाथ फॉर्म बाद में आया। तो ये जो नील माधव है, ये एक्चुअली मेंटेनर है, और इनका जो कॉम्प्लेक्शन दैट इज वेरी ब्यूटीफुल, लाइक हम सोच भी नहीं सकते इतना ब्यूटीफुल है। स्पेशली नील, नील मतलब ब्लू, तो इनको नीलमणि भी बोला जाता है। नीलमणि की तरह उनका रंग है। मणि, नीलमणि किसको बोलते हैं इंग्लिश में? सफायर, ब्लू सफायर करके एक जेम रहता है, बहुत सुंदर रहता है। तो ये जो नील माधव है, इनका जो कॉम्प्लेक्शन था, इनका जो रंग था, इस विग्रह का जो रंग था, दैट वाज लाइक ब्लू सफायर से बना हुआ है। सो ब्यूटीफुल। आप लोग विजुअलाइज कीजिए, जितना हो सके उतना तो कर ही सकते हैं विजुअलाइज। अब इमेजिन कीजिए एकदम फ्रेश ब्लू कलर का एक फॉर्म है, शेष शाही नाग के ऊपर लेटा हुआ, और लक्ष्मी देवी उनके चरण कमल को की सेवा कर रही हैं। दैट इज नील माधव। तो ये तो वे मेंटेनर, इनका ऑफिस कहाँ है? क्योंकि कोई भी मैनेजर है तो उसका ऑफिस रहता है, राइट? तो वेयर इज दैट ऑफिस? हाँ, जगन्नाथपुरी इज द ऑफिस ऑफ नील माधव। टू बी मोर स्पेसिफिक, इसका नाम था नीलाद्रि या फिर नीलाचल। नीलाचल इज द ओरिजिनल नेम ऑफ जगन्नाथपुरी। वो तो जगन्नाथ जी है, तब से वो जगन्नाथपुरी बन गया, अदरवाइज ओरिजिनल नेम था उसका नीलाचल, क्योंकि नील जो नील माधव है उनका जगह है वो, और नीलाद्रि भी बोलते हैं क्योंकि वो पर्वत जैसा था उस समय पे। सो दैट इज द ऑफिस। और इसका बहुत शास्त्रों में प्रमाण है कि पूरी दुनिया में प्रलय आ जाएगा, पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, पुणे सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन एक जगह में कभी प्रलय नहीं आता, एक जगह हमेशा मेंटेन होती है, दैट इज जगन्नाथपुरी। मेंटेनर का ही ऑफिस है ना, वो कैसे डिस्ट्रॉय होगा? तो दैट इज इटर्नल प्लेस, और उसको भू वैकुंठ भी बोलते हैं। ओके, भूमि में जो वैकुंठ है। तो ये जो नील माधव जो विग्रह है, इनका अनादिकाल से सेवा उनकी चलती आ रही थी, और खास करके जो नीलाचल के लोकल जो ट्राइब थी वो उनकी सेवा करते थे। लोकल ट्राइब का नाम क्या है, किसी को पता है? शबर, शबर जाति। तो आप लोगों ने शबरी नाम तो सुना ही होगा, वेरी फेमस। तो शबरी एक्चुअल में उनका नाम नहीं था, जिन्होंने मीठे, जिन्होंने पेड़ चख के फिर भगवान को दिए, उनका नाम नहीं था शबरी, उनकी जात थी। दैट वाज हर कास्ट, नहीं बोलना चाहूँगा, कास्ट इज अ बैड वर्ड, बट उनका वर्ण था, उनका वर्ण था शबर जाति। शबर से थी इसलिए उनको शबरी बोलते हैं। तो उसी प्रकार से वही शबर जाति वहाँ पे भी एग्जिस्ट करती थी नीलाचल में, और भगवान का ऑफिस है वो, तो भगवान उनसे सेवा स्वीकारते थे। और ऑब्वियसली शबर जाति जो है दैट इज आदिवासी कम्युनिटी, आज भी एग्जिस्ट करती है। इनफैक्ट जब भगवान स्नान यात्रा के बाद फिर कौन सी लीला करेंगे भगवान, किसी को पता है? स्नान यात्रा के बाद क्या होता है? शयन। शयन तो रोज ही करते हैं। होपफुली आप में से कोई शयन नहीं कर रहा ना? अच्छा, अगर हम लोग बहुत देर तक नहाते हैं, बहुत बहुत पानी से नहाते हैं, खुले में नहाते हैं बहुत देर तक, तो क्या होता है? हाँ, बीमार पड़ते हैं, राइट? अभी हम लोग बीमार पड़ते हैं, भगवान बीमार नहीं पड़ सकते क्या? अगर हम बीमार पड़ेंगे, भगवान बीमार नहीं पड़ सकते, तो हम तो भगवान से बड़े हो गए। थोड़ा कंफ्यूज कर दिया ना मैंने। भगवान को सब कुछ होना चाहिए जो हमको होता है, और हमसे परे भी होना चाहिए।
हम बीमार होते तो भगवान अगर बीमार नहीं हुए मतलब वो भगवान नहीं है, राइट? तो इसलिए भगवान भी बीमार होते हैं अपनी भगवत्ता को पूर्ण करने के लिए, और वो होते हैं जब बहुत देर तक नहाते हैं। अभी आप लोगों ने देखा है तो वॉशरूम में नहाते हैं क्या जगन्नाथ जी को स्नान यात्रा? नहीं, खुले में होता है, सबके सामने होता है, और भर भर के पानी सुनकर नहाया जाता है, बहुत सारा पानी यूज होता है। तो ऑब्वियस है कि बीमार तो पड़ेंगे ही। तो उसके बाद फिर एक लीला आती है, एक फेस्टिवल आता है जिसको बोलते हैं अनवसर फेस्टिवल। अनवसर मतलब अवसर नहीं है अभी। किस चीज का अवसर नहीं है? दर्शन का, अभी मिलने का टाइम नहीं है, दैट इज अनवसर। तो दैट इज ऑल्सो वन लीला ऑफ लॉर्ड। और सबसे पेनफुल समय रहता है ये, सारे जगन्नाथपुरी के जितने भी भक्त हैं उनका सबसे पेनफुल समय रहता है, क्योंकि कुछ भक्तों की ऐसी आदत रहती है कि डेली हमें जाके दर्शन लेना है, डेली दिन में 2 बार 3 बार जाके दर्शन लेना है। तो आप सोचिए ऐसे लोगों का क्या होता होगा, पूरा शेड्यूल। अभी इमेजिन करो कि हर दिन सेशन होता है हमारा गीता टुडे का, और 2-3 दिन अगर सेशन नहीं हुआ, आप लोग तो खुश हो जाओगे, लेकिन वो लोग खुश नहीं होते थे, वो लोग एकदम परेशान हो जाते थे। और उसमें उनको अलग प्रकार का जो विरह, उनको अलग प्रकार की एक्सटेसी और बढ़ाते हैं भगवान इस माध्यम से। भगवान बीमार क्यों होते हैं, उसके पीछे डीप रीजन है, जिससे कि भक्तों का जो प्रेम है वो और बढ़े। सेपरेशन हमने कुछ सेशंस पहले ऑनलाइन में डिस्कस किया था कि विरह से प्रेम और ज़्यादा बढ़ता है। तो ऐसा जो समय है, ये जो अनवसर का जो समय है, इसका एक कारण है कि भक्तों में विरह बढ़ाना, और दूसरा कारण है अपने जो सबसे क्लोज एसोसिएट्स हैं उनको सेवा का मौका देना। उनके सबसे क्लोज एसोसिएट्स मतलब कौन? शबर जाति के लोग। तो ऐसे टाइम पे भगवान की सेवा करते हैं शबर जाति वाले लोग, क्योंकि बाकी सबको अलाउड नहीं है, बट दे कैन गो इनसाइड एंड दे कैन टेक केयर। और जनरली जैसे अभी कोई, हम लोग भी जॉब करते हैं, अलग अलग जगह पे रहते हैं, और अगर हमारी सपोज खुदा ना खास्ता कभी तबीयत खराब हो गई, बाकी सब फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, ठीक है, बट जब तबीयत खराब होती है तो कौन सबसे ज़्यादा मैटर करता है? हाँ, डॉक्टर। सही है, डॉक्टर है नेचुरली। क्लोज एसोसिएट्स, फैमिली मेंबर्स ही डॉक्टर के पास ले जाते हैं। और फैमिली मेंबर्स में भी सबसे ज़्यादा केयर कौन करता है? हाँ, माता पिता, मम्मी पापा। तो ये जो शबर जाति के लोग हैं, ये शुरू से भगवान के एसोसिएट्स रहे हैं। दे आर लाइक द मोस्ट क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर्स, दे आर लाइक मदर एंड फादर ऑफ जगन्नाथ, राइट? मदर फादर बच्चों से पहले से एग्जिस्ट करते हैं, राइट? उसी प्रकार से शबर जाति के जो लोग हैं वो जगन्नाथ जी से पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं। जगन्नाथ जी तो बाद में आए, उनसे पहले जब वो नील माधव के फॉर्म में थे तब भी वो उनकी सेवा करते थे। सो दे आर लाइक पेरेंट्स, उनका वात्सल्य भाव रहता है भगवान के प्रति। तो ये जो ओरिजिनल फॉर्म है नील माधव का, इनकी सेवा कौन करते थे ओरिजिनली? शबर जाति के लोग। और उसमें से भी, शबर जाति में से भी उनके जो राजा हैं, ही वॉज लाइक सोल्ड आउट सर्वेंट ऑफ नील माधव। उनको समहाउ मिले नील माधव तो हमेशा से एग्जिस्ट कर रहे थे नीलाद्री में, लेकिन उनको समहाउ मिले नील माधव। और जैसे कोई प्रीशियस चीज़ मिल जाती है, अगर डायमंड मिल जाता है तो हम उसको ऐसे ही अपने ड्राइंग रूम में नहीं रखते, हम उसको कैबिनेट में एकदम लॉक करके, एकदम किसी को पता नहीं चलना चाहिए, फैमिली मेम्बर्स को भी पता नहीं चलना चाहिए, कभी कभी ऐसे रखते हैं। तो ये जो राजा थे इनके, शबर जाति के जो राजा थे, उनको इतना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट था नील माधव के प्रति। एक तो भगवान है, ऊपर से इतना सुंदर फॉर्म है उनका, ही वाज सो अटैच्ड कि उनको हमेशा एक प्रकार की इनसिक्योरिटी रहती थी। इनसिक्योरिटी पता है क्या बोलते हैं हिंदी में? गुड गेस। सुरक्षा, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, असुरक्षितता, इनसिक्योरिटी। तो उनको इतनी इनसिक्योरिटी रहती थी कि किसी को नहीं पता था नील माधव कहाँ पर है। उन्होंने ऐसी जगह पे उनकी स्थापना की थी नील माधव की। किसी को मतलब उनकी खुद के बेटी को भी नहीं पता था, उनके खुद के फैमिली मेंबर्स को भी नहीं पता था कहाँ पे है। और वो जिससे किसी को पता ना चले, इसलिए कब दिन के कौन से समय पे जाके उनकी सेवा करते थे? एनी गेस?
ऑप्शन ए अर्ली मॉर्निंग, ऑप्शन बी डे टाइम, ऑप्शन सी इवनिंग टाइम, ऑप्शन डी नाइट टाइम, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। जनरली मेरे आंसर्स नन ऑफ द अबव में ही रहते हैं, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। तो ये जो राजा हैं ये नाइट टाइम में जाके सेवा करते थे, नाइट में भी लेट नाइट, तो वो भी हमारी तरह जागते थे रात में, लेकिन उनका पर्पस अलग था, उनका पर्पस डिवाइन कॉज था। और वो फिर दिन में सोते थे, दिन में सोते थे, रात में जागते थे, रात में जाके किसी को पता ना चले इसलिए रात में जाके उनकी सेवा करते थे। इसलिए आज भी जगन्नाथ जी का श्रृंगार दर्शन जो है, जैसे हमारे यहाँ पे श्रृंगार दर्शन 7:30 बजे होता है, जगन्नाथ जी का श्रृंगार दर्शन कितने बजे होता है? रात में 12-1 बजे के करीब होता है। अगर आपको जगन्नाथ जी का श्रृंगार दर्शन अटेंड करना है तो उसके लिए नींद सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए तो छोटी बात है। तो रात में उनका श्रृंगार होता है, क्योंकि ये जो राजा थे रात में जाके उनकी श्रृंगार, उनकी सेवा करते थे। और इनका नाम क्या था? एनीवन नोस? इनका नाम था विश्ववसु, विश्ववसु नाम था इनका। तो ये तो थे ही भगवान के बहुत प्रेमी भक्त, और इन्होंने किसी को पता नहीं लगने दिया नीलमाधव कहाँ पर है, और उनके अकेले में जाके बहुत इंटीमेट सेवा करते थे। लेकिन इनके अलावा और एक उस समय पे एक शुद्ध भक्त थे, और वो भी राजा थे, जिनको भी बहुत ज़्यादा ईगरनेस थी, क्योंकि उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा था कि ऐसा एक फॉर्म है जो कि दुनिया को मेंटेन करता है, और ये ऐसे टाइम पे आएंगे। पहले के ज़माने में राजा महाराजा लोगों को भी शास्त्रों का ज्ञान रहता था अच्छे से, तो बहुत विचलित रहते थे कि मुझे भी दर्शन लेना है, मुझे भी दर्शन लेना है इनका, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो पूरी प्रजा है उसका लाभ हो इनका दर्शन प्राप्त करके। लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कहाँ पर है वो। तो ये जो राजा है इनका नाम क्या था? एनीवन नोस? फेमस है ये राजा का नाम। तो इन राजा का नाम था इंद्रदुम्न महाराज। तभी हमने 2 नाम बताए, 2 कैरेक्टर्स बताए, एक है विश्ववसु जो शबर जाति के राजा हैं, और दूसरा है इंद्रदुम्न जो रेगुलर सम्राट काइंड ऑफ है। तो बहुत उनकी इच्छा होती थी, बहुत प्रार्थना करते थे, और उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होके भगवान ने फिर अपने दूत को भेजा, नारद मुनि को भेजा उनके पास। और फिर नारद मुनि जो है उन्होंने उनको बताया कि ये जो फॉर्म है नीलमाधव का ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ओके, और फिर उन्होंने उनको बताया कि नीलाद्रि पर्वत है, वहाँ पे फॉर्म एग्जिस्ट करता है। तो जैसे ही उन्होंने सुना ही बिकेम वेरी सुपर, क्या बोलते हैं, सुपर ईगर टू गो एंड टेक दर्शन ऑफ दैट फॉर्म ऑफ नीलमाधव। लेकिन नारद मुनि ने और बाकी के जो उनके मंत्री हैं उन्होंने उनको समझाया कि आप मत जाओ, अभी आप राजा हो, आपके ऊपर बाकी भी जिम्मेदारियां हैं, वहाँ पे शबर जाती रहती है, पता नहीं वो आपको क्या कर देंगे, आदिवासी है। आदिवासी मतलब वो लोग कुछ भी खाते थे, बाय द वे जानवर भी खाते थे वो लोग। तो अभी हम समझ नहीं सकते कि ऐसे जाति के लोगों से भी भगवान सेवा स्वीकार कर रहे हैं। एक्चुअली एक विश्ववसु को एक इनसिक्योरिटी क्यों रहती थी, उनको ऐसा लगता था कि मैं भगवान की उतनी अच्छे से सेवा नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं तो शबर जाति से हूँ, राइट, मेरा कुछ ट्रेनिंग हुआ नहीं है, विग्रह सेवा कैसे करना है, आराधना कैसे करनी है। उनको नेचुरली जो हृदय से भाव आता था, स्पॉन्टेनियसली वैसे वो सेवा करते थे, और भगवान को वो ज़्यादा पसंद है, राइट। ऑफ कोर्स वो स्पॉन्टेनियस भाव आउट ऑफ लव होना चाहिए, हमें प्रीमेच्योरली ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम कैसे भी सेवा करेंगे भगवान की और वो स्पॉन्टेनियस लव है, नहीं, दैट मे बी स्पॉन्टेनियस लेजीनेस, राइट, और दैट मे बी स्पॉन्टेनियस केयरलेसनेस। भगवान को सिर्फ स्पॉन्टेनियस ही नहीं पसंद, स्पॉन्टेनियस लव होना चाहिए। तो अगर किसी में है लव उतना भगवान के प्रति तो कर सकते हैं, बट इट्स रिस्की। तो इन जनरल वी शुड फॉलो ऑल द विधि विधान प्रॉपरली, एंड जब हम विधि विधान पालन करते हैं उसके माध्यम से हम भगवान को अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं। बट उनकी बात अलग थी, विश्ववसु की बात अलग थी, ही वॉज ऑन दैट प्लेटफॉर्म ऑफ स्पॉन्टेनियस लव। तो इसीलिए उनके लिए कुछ नियम कानून मायने नहीं रखते। लेकिन ये जगन्नाथ जी के नीलमाधव की तरफ से था, लेकिन जो विश्ववसु हैं उनको अपनी तरफ से हमेशा कमी लगती थी कि मैं ठीक से सेवा नहीं कर पा रहा, और उनको डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा व्यक्ति आए सेवा करने के लिए जिनकी सेवा मुझसे अच्छी हो और फिर नीलमाधव उनके साथ चले जाए। ये उनको डर लगता था, हमेशा हमेशा इनसिक्योरिटी रहती थी।
तो इसीलिए किसी को नहीं बताते थे। तो जब इनको पता चला, अपने किनको, नीलाद्रि के बारे में, नीलमाधव के बारे में, किनको पता चला? हाँ इंद्रप्रद्युम्न थोड़ा ऐड कर दिया अपने नाम में, इंद्रद्युम्न। सबने सुन लिया ना नाम? अभी कोई सबको क्लियरली बोलना है अभी। इंद्रद्युम्न महाराज। तो जो इंद्रद्युम्न महाराज हैं, इनको जब मंत्रियों ने सजेशन दिया कि आप मत जाइए, आप बाद में जाइएगा, पहले किसी अपने मंत्री को पहले पता तो लगाइए कहाँ पर है, आप थोड़ी हर जगह भटकते रहोगे। तो उन्होंने अपने बहुत सबसे जो बुद्धिमान अपना एक क्या बोलेंगे उनको, पंडित बोलेंगे या पुरोहित बोलेंगे, पुरोहित, उनको उन्होंने भेजा, जिनका नाम था विद्यापति। विद्यापति, विद्या के पति। उनको उन्होंने भेजा वहाँ पे पता लगाने के लिए कि नीलमाधव कहाँ पर है। और फिर ये जो विद्यापति हैं, ये गए उधर नीलमाधव में, सॉरी नीलाचल में, वहाँ पे हर जगह जाके ढूंढ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा कोई विग्रह है क्या। बहुत डिस्क्रिप्शन पता था शास्त्रों में, पूछा लेकिन किसी को पता ही नहीं, क्योंकि बताया ही नहीं। क्या किसने नहीं बताया? हाँ गुड, सब है अलर्ट। तो विश्वसु ने किसी को बताया ही नहीं, तो बहुत विचलित हो गए, बहुत परेशान हो गए। ऐसे ढूंढते ढूंढते थक हार के फिर वो प्रार्थना करने लग गए कि मुझे पता ही नहीं चल रहा, मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, और सेवा नहीं करूँगा तब तक वापस भी नहीं जा सकता, घर की भी याद आ रही है। तो ऐसे प्रार्थना, बहुत उनकी गहन प्रार्थना से प्रसन्न होगी। फिर भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि वो मधुकरी करते करते ऐसी जगह पे पहुँचे जो कि विश्ववसु का घर था। बेसिकली वो घूमते घूमते पूछते पूछते विश्ववसु के घर पे पहुँचे, और ऐसे समय पे पहुँचे कि उस समय पे विश्ववसु नहीं थे, उनकी बेटी थी। उनकी बेटी का नाम था ललिता। ललिता वॉज द नेम ऑफ हिज डॉटर। और फिर उन्होंने घर पे खटखटाया, एंड देन ललिता रिसीव्ड हिम। और इतना अच्छा ट्रेन किया था ललिता को उनके पिताजी ने, विश्ववसु ने, कि हाउ टू रिसीव अ गेस्ट। हर गेस्ट रिसेप्शन वॉज अमेजिंग। बहुत अच्छे से उन्होंने उनको अंदर घर की सत्कार किया, सब स्वागत वगैरह किया, उनकी नीड्स को टेक केयर किया। तो ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, विद्यापति वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। एंड देन विश्ववसु केम बैक। और फिर विश्ववसु ने देखा कि एक बहुत बड़े राजा के ये हैं, पुरोहित हैं, ब्राह्मण हैं, राइट। तो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे घर में रुकिए जब तक आपका मिशन अकम्प्लिश नहीं होता। मिशन उन्होंने बताया नहीं, क्योंकि उनको डर था कि बताऊंगा तो फिर क्या पता लोग कैसे डील करेंगे। इट वॉज अ हिडन मिशन। प्रॉपर टर्म है कि इसके लिए कुछ? सीक्रेट मिशन। हाँ यस, सीक्रेट मिशन पे आए थे वो। तो और ऊपर से राजा के मंत्री हैं, राजा के ब्राह्मण हैं, तो उनको पता है हाउ टू मेंटेन द सीक्रेसी। तो किसी को नहीं पता, बट उनके घर पे रह रहे थे, और ही वॉज वेरी प्लीज, वेरी हैप्पी विद देयर रिसेप्शन। और वहीं पे रुके वो। और उनको दिखता था कि जो विश्ववसु है, ये रात में कहीं तो गायब हो जाते हैं, कुछ तो अलग ही शेड्यूल फॉलो करते हैं। अभी हमारे लिए नॉर्मल है आज के ज़माने में, लेकिन ये सतयुग की बात चल रही है। सतयुग में लोग सुबह को जगते थे, रात में सोते थे, ठीक है। तो ये जो क्या है, मंत्री का नाम क्या था? विद्यापति। वेरी गुड। तो विद्यापति जो है, इनको थोड़ा सा अलग सा लगा कि ये रात में जाते हैं उधर, कुछ तो करते हैं अलग अलग। और उसके पहले ऐसे पूजा के थाली प्लेट उनकी बेटी बनाती है ललिता। ललिता को उन्होंने ट्रेन किया था। ललिता पूछती थी कि ये थाली मैं किसके लिए बना रही हूँ, क्या होने वाला है इसका। वो क्या बोलते थे? नो क्वेश्चन, चुपचाप बनाओ, बस जो बोल रहे हो करो, मुझे दो, मैं देखूंगा क्या करना है, क्योंकि बेटी को भी नहीं बताना था। तो इस प्रकार से उन्होंने ऑब्जर्व किया, उनको कुछ तो वहाँ पे अजीब लगा। लेकिन फिर भी क्योंकि वो ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण जब, अभी वो लोग शबर जाति के थे, शबर जाति के लोगों को इतना नहीं पता ना, कुछ तो फूल वूल कुछ तो बना के वो दे देती थी उनको। तो इन्होंने देखा, इन्होंने ऑब्जर्व किया, और इन्होंने फिर उसको गाइड करना शुरू किया कि ऐसे बनाते हैं, ब्राह्मण है ना प्रॉपर, कि ऐसे बनाते हैं, ऐसे रखते हैं, इतना रखते हैं, ऑल दैट पूरा अरेंजमेंट बनाना उन्होंने शुरू किया, गाइड करना। और ऐसे करते करते विश्ववसु भी बहुत खुश हुए उनसे, और एक काइंड ऑफ एक फैमिली बॉन्डिंग हो गया उन सबके बीच में। एंड दे स्टार्टेड फीलिंग हिम एज देयर फैमिली मेंबर ओनली। ललिता जो है साथ में सेवा करते थे दोनों, तो दोनों के बीच में भी एक प्रकार का आकर्षण हो गया।
और धीरे धीरे फिर देन दे गॉट मैरिड। सो ये जो विद्यापति थे और जो ललिता थी, इनकी शादी हो गई। और विद्यापति जो है वो विश्वावसु के क्या हो गए? हाँ, दामाद। और वो उनके घर में रहने लगे। क्यों? सीक्रेट मिशन। तो उनके घर में रहने लगे एज अ घर जमाई बोलते हैं। तो उनके घर में रहने लगे और फिर उनको लगा कि कुछ तो चल रहा है यहाँ पे, मुझे जान अभी तो दामाद बन गया, राइट? दामाद को तो सब कुछ पता होना चाहिए, घर की हर चीज पता होनी चाहिए, कौन से लॉकर में क्या रखा है, कौन से लॉकर का क्या कोड है, राइट? सब कुछ पता रहना चाहिए। तो अभी वो जो विद्यापति हैं, उन्होंने फिर थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना शुरू किया। अभी विश्वावसु को पूछने में डरते थे, वो क्या है, ससुर है ना, तो अपनी वाइफ को पूछते थे कि क्या ये रात में कहाँ जाते हैं पूजा थाली लेके? तो वो बोली नहीं, पूछने का नहीं सिर्फ जो क्या उनके पिताजी ने क्या बोला, जो बोला उतना करने का, बस, उससे ज़्यादा पूछने का नहीं। तो करते रहे, फिर भी उनको अंदर से तृप्ति नहीं हो रही थी। तो एक बार वो एकदम जिद पे अड़ गए कि अभी तक क्या हो गया था, अभी तक वो डिपेंडेंट हो गए थे उनके ऊपर, ब्राह्मण क्योंकि विद्यापति के ऊपर, कि वो प्लेट बना के देते थे परफेक्टली, और तब जाके फिर वो ललिता जो है वो उनको देती थी, और फिर वो जाके वर्शिप करते थे नीलमाधव की। तो एक बार ये जो अपने विद्यापति हैं, ये स्ट्राइक पे चले गए, हड़ताल, कि जब तक मुझे पता नहीं चलेगा, जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी तब तक मैं प्लेट नहीं बनाऊंगा, जो करना है करो। ऐसे जिद पे अड़ गए। और फिर वो जो उनकी बेटी है वो भी एकदम विचलित हो गई कि अभी कैसे होगा, अभी सेवा कैसे होगी, और वो अनशन पे भी चले गए कि खाऊंगा भी नहीं मैं, कुछ भी नहीं करूंगा मैं, पूरा फुल स्ट्राइक। और फिर वो जो बेटी है, बेटी भी दुखी हो गई, और फिर प्लेट नहीं बन पा रही है। तो वो जो विश्वावसु है, उनका टाइम हो गया अभी जाने का, और जाके देख रहे प्लेट ही नहीं बना है, क्या लेके जाऊंगा मैं? तब जाके फिर उन्होंने बोला कि प्लेट तभी बनेगी जब हमारी मांग पूरी होगी, तभी प्लेट बनेगी। और फिर उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप कहाँ जाते हो, मुझे भी लेके चलो, मुझे भी देखना है क्या करते हो, आपका दामाद हो, मुझे सब पता रहना चाहिए। तो फिर उन्होंने बोला कि अभी क्या है, अभी सेवा ही नहीं हो पा रही है तो क्या ही करेंगे अभी। ललिता में उतना वो नहीं था कि वो स्ट्राइक पे नहीं गई लेकिन ये स्ट्राइक पे चले गए। तो फिर इन्होंने एक कंडीशन बोला कि ठीक है, मैं तुमको लेके चलूंगा, मैं कहाँ पे जाके किसकी सेवा करता हूँ मैं तुम्हें बताऊंगा, सब दिखाऊंगा, लेकिन एक कंडीशन है। किसी को पता है क्या कंडीशन है वो? यस, हाँ, कि तुम्हारे आंखों में पट्टी बांध के मैं लेके चलूंगा, जिससे रास्ता पता ना चले, जिससे अगली बार आके फिर लेके ना जा पाए। तो उनकी आंखों पे पट्टी बांधी एकदम प्रॉपर से, और फिर उनको लेके जाया गया उस जगह पे। लेकिन ये जो विद्यापति हैं, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, राइट? राजा के मंत्री हैं, राजा के पुरोहित हैं, तो इनके पास अपनी एक स्ट्रेटेजी थी पता लगाने की, रास्ता। किसी को पता है क्या स्ट्रेटेजी थी वो? आपके अलावा? हाँ, सबको पता है ऑलरेडी, पास्ट टाइम सारे तो वो अपने साथ, उन्होंने अपनी जो पत्नी है ललिता, उनसे अच्छा अभी ये नहीं पता रहेगा, उनसे कौन से बीज मांगे? गेहूं के हो सकता था, बट सरसों ये भी पता है। तो थोड़ा और एडवांस क्वेश्चन मुझे सोचना पड़ेगा अभी। तो उन्होंने सरसों के बीज मांगे, और फिर सरसों के बीज लाके दिए इन्होंने, और फिर वो जाते जाते रास्ते पे बीच बीच में वो डालते गए सरसों के बीज। और फिर जाके उन्होंने जब दर्शन लिए तो उनका हृदय एकदम गदगद हो गया, बहुत खुश हुए, और फिर वापस फिर, और अभी उनका मिशन तो हो गया अभी, राइट? सीक्रेट मिशन अकम्प्लिश्ड, क्योंकि रास्ता पता चल गया अभी। तो उन्होंने थोड़ा सा बोला कि मुझे अपने घर की याद आ रही है, बहुत समय से गया नहीं हूँ मैं, थोड़ा जाके आता हूँ घर। तो इनको अलाउ कर दिया घर जाने के लिए। अब फिर वो आ गए अपने जगन्नाथपुरी, या जो भी कैपिटल था, वहाँ पे आ गए। फिर वहाँ पे आके उन्होंने बताया, पूरा डिस्क्रिप्शन बताया नीलमाधव का, हाउ ब्यूटीफुल दैट फॉर्म इज एंड ऑल दैट। और फिर ये जो राजा हैं, राजा कौन? इंद्रद्युम्न, वेरी गुड। उन्होंने फिर पूरा तैयारी किया जाने का, उधर पूरी प्रजा के साथ जाने का। और तब तक बारिश का मौसम आया, वो जो सरसों के बीज थे उससे सरसों आ गया। और फिर पूरा का पूरा जो एक्चुअली सिर्फ राजा का प्लान था मैं अकेले जाऊंगा,
लेकिन राजा के साथ मंत्री, मंत्री के साथ मंत्री का परिवार, मंत्री के परिवार के साथ मंत्री के परिवार के रिश्तेदार, रिश्तेदार के साथ उनके रिश्तेदार, ऐसे करके पूरे का पूरा जो गांव है, पूरा गांव ही निकल पड़ा नीलमाधव के दर्शन के लिए, और सबके सब उधर जाने लगे। और फिर जाते जाते फिर उधर पहुंच गए, वो सब कुछ प्रॉपरली हो गया। और वहां पे जाके जब उस जगह पे पहुंचे तो उनको अपने जीवन का सबसे बड़ा शौक मिला। वहां पे जाके इतना मेहनत करके, ऐसे नहीं कि ओला उबर बुक किया और चले गए, नहीं, उनको काफी महीने लगे उधर जाने के लिए, महीने लगे। बीच में नदी थी, नदी पार करने में बहुत मेहनत की, पैदल जाते थे ना, पैदल या जो भी रथ वगैरह पे। तो वहां पे जाने के बाद क्या हुआ, जिस काम के लिए वो आए थे वो काम ही अनसक्सेसफुल हो गया। वहां पे जाके क्या पता चला उनको, नीलमाधव गेले, गायब, नीलमाधव डिसअपियर्ड। तो दर्शन उनको नहीं हो पाए नीलमाधव के, जिसके लिए इतनी मेहनत की। तो सैड एंडिंग भगवान की लीलाओं में सैड एंडिंग नहीं होती कभी, हमेशा हैप्पी एंडिंग ही होती है। इस दुनिया की लीलाओं में कभी हैप्पी एंडिंग नहीं होती, हमेशा सैड एंडिंग होती है। भगवान की लीलाओं में हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है। तो उनको आवाज़ आई, जो इंद्रदुम्न महाराज, उनको आकाशवाणी हुई कि मैं अभी नीलमाधव के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करूँगा, बट डोंट टेक इट पर्सनली, ऐसा उन्होंने अपनी भाषा में बोला आकाशवाणी में। ये तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी खुद की इच्छा थी कि मैं सबको एक्सेसिबल होना चाहता हूँ, पूरी दुनिया को मैं एक्सेसिबल होना चाहता हूँ। खास करके आगे आने वाले जो ये हमारे स्विम के जो पार्टिसिपेंट्स हैं और आगे आने वाले जो कलयुग के जो लोग हैं, इन सबको मैं एक्सेसिबल होना चाहता हूँ। लेकिन मेरा जो ये फॉर्म है नीलमाधव का फॉर्म, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल फॉर्म है, ये बहुत ही गुह्य फॉर्म है, ये सबके लिए एक्सेसिबल नहीं है। क्योंकि कलयुग के जो लोग हैं उनके ऊपर कृपा करने के लिए नीलमाधव फॉर्म इज नॉट सफिशिएंट। वो सफिशिएंट को क्या बोलते हैं, काफी, पर्याप्त, वेरी गुड, वो काफी नहीं, वो पर्याप्त नहीं है। कलयुग के लोगों के लिए मुझे और ज्यादा मर्सिबल फॉर्म लेना पड़ेगा, इतनी गई बीती हालत है उनकी तो और ज्यादा मर्सिबल फॉर्म लेना होगा और ज्यादा मर्सिबल प्रोसेस देना पड़ेगा उनको फॉलो करने के लिए, राइट। तो इसीलिए मेरा खुद का एक प्लान है, मैं एक अलग फॉर्म में आऊँगा और मैं उस फॉर्म में तुम्हें दर्शन दूंगा और उस फॉर्म में तुम मेरी सेवा करना, और उस फॉर्म में मैं सबके लिए एक्सेसिबल होऊंगा, क्योंकि इट्स मोर मर्सिबल फॉर्म देन नीलमाधव आल्सो, एंड दैट फॉर्म इज जगन्नाथ, दैट फॉर्म इज जगन्नाथ। तो ये जो फॉर्म है ये कैसे आता है इंद्रदुम्न महाराज के पास, लकड़ी के रूप में, दारू ब्रह्म बोलते हैं उसको। तो ये जो लकड़ी है ये एक बार ओशियन से, वो अभी डिटेल्स में नहीं जाएंगे हम ज़्यादा क्योंकि आवर टाइम इज ऑल्सो लिमिटेड। तो एक बार उनके जो मंत्री हैं, जो भी उनके राज्य के जो लोग हैं, उनको ऐसे चार बहुत स्पेशल ऐसे वुडन लॉग्स आते दिखते हैं, और उनको भगवान के लक्षण बताए थे कि वो जो वुडन लॉग्स हैं उनके क्या क्या लक्षण रहेंगे, कैसे समझेगा कि यही वो फॉर्म है, भाई यही वो लकड़ी है जिससे तुम्हें मेरा फॉर्म बनाना है जगन्नाथ का। तो दे प्रोक्योर्ड इट, और फिर उससे फिर उन्होंने जगन्नाथ का फॉर्म बनाया। और वो जो वुडन लॉग्स हैं वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। हर कुछ समय में जो ये जगन्नाथ डीटी है, जो पुराना विग्रह है, मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं है, किसी को पता है तो बता सकते हैं, कितने अंतराल में उनका जो पूरा विग्रह है, पूरा नया विग्रह बनाया जाता है। हाँ, 12 साल में, वेरी गुड। तो 12 साल में पूरा फॉर्म नया रहता है, पूरा विग्रह नया रहता है, एक्सेप्ट दैट दारू ब्रह्म जो अंदर रहता है उनके, मतलब उनके अंदर जो ऐसा ब्रह्म पदार्थ भी बोलते हैं उसको, करेक्ट। सो दैट इज द हार्ट ऑफ कृष्णा। ऐसे भी कुछ ट्रेडिशंस में बोला जाता है कि जब कृष्ण अपनी लीला समाप्त किए उसके बाद उनका हृदय वहीं पे था, और वो हृदय जगन्नाथ जी में है, दैट इज ब्रह्म पदार्थ। तो उसके पीछे भी लीला है कि जो इंद्रदुम्न महाराज थे, उनको ऐसा बोला गया था कि स्पेशली हम एक कारीगर को भेजेंगे जो कि इस विग्रह की निर्मित करेगा। और वो कारीगर कौन थे? हाँ, विश्वकर्मा, वेरी गुड।
तो विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट के पास में एक विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट है, ऑफ कोर्स उस इंस्टीट्यूट से नहीं थे वो, नहीं तो नहीं बना पाते। तो विश्वकर्मा जो हैं, जो स्वर्ग के जो ये हैं, क्या बोलते हैं उनको, इंजीनियर, जो स्वर्ग के इंजीनियर हैं विश्वकर्मा, वो आए विग्रह की निर्मित करने के लिए, और उन्होंने एक कंडीशन रखा कि मैं बनाऊंगा विग्रह लेकिन मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। तो उन्होंने रूम के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का टैग लगा दिया, ठीक है, DND टैग, कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, डिस्टर्ब किया तो खत्म बस, फिर उसके बाद कुछ नहीं बनाऊंगा मैं फिर। तो ऐसे चलता रहा। फिर जो इंद्रदम्न महाराज बाहर रहते थे कमरे के बाहर, और अंदर से ठोकने पीटने की आवाज़ आती रहती थी, और एक समय के बाद ठोकने पीटने की आवाज़ बंद हो गई। तो इनको डाउट हुआ कि क्या हो गया अंदर, कहीं कुछ, अभी इतने दिनों से सेवा कर रहे हैं, बना रहे हैं बिना कुछ खाए पिए सोए, क्या पता कहीं मरवर तो नहीं गए, कुछ होता नहीं गया। तो उन्होंने डर के कारण उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया, जो करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, जो करना चाहिए था, राइट। भगवान की इच्छा थी, भगवान की इच्छा थी कि ऐसे समय पे ही वो खोले दरवाजा। तो भक्त लोग कई बार गलतियां करते हैं, लेकिन वो गलतियां भी भगवान के इच्छा के कारण होती है। तो उन्होंने दरवाजा खोल दिया, और फिर विश्वकर्मा जो है वो इमीडिएटली डिसअपियर हो गए, और वो जो फॉर्म था वो अधूरा ही रह गया, वो जो निर्मित था वो अधूरा ही रह गया। एंड दैट फॉर्म इज जगन्नाथ। इसलिए जगन्नाथ जी के हाथ नहीं है, पेट नहीं है, पेट है ऑफ कोर्स, पैर नहीं है। पूरे शरीर में सबसे ज्यादा क्या दिखता है? पूरे शरीर में सबसे ज्यादा आंखें दिखती हैं। और ये जो इंद्रदम्न महाराज थे, ये पूरा डिप्रेशन में चले गए कि अरे पहले एक गलती की, उधर मैं गया, उसके वजह से नीलमाधव डिसअपियर हुए, अभी वापस से मैंने गलती की, मैंने दरवाजा खुलवा दिया, इससे जगन्नाथ जी भी पूरी तरह से संपूर्ण नहीं हो पाए। उनको डबल गिल्ट हो गया दोनों कारण से, कि मतलब हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ी करता हूँ मैं उनको फील हुआ। लेकिन दोनों समय पे भगवान का इंटरनल इच्छा थी, कारण था। तो ये जो फॉर्म है जगन्नाथ जी का, ये कोई गलती का रिजल्ट नहीं है, ये एक्चुअल में भगवान का फॉर्म है, इज रियली फॉर्म ऑफ कृष्णा, ये एक्चुअल में कृष्ण का फॉर्म है। एंड जो नीलमाधव है, दैट इज स्टिल अ फॉर्म ऑफ विष्णु, वो विष्णु का फॉर्म है, क्योंकि इस पूरे सृष्टि को स्थिति, इस पूरे सृष्टि का मेंटेनेंस कौन करते हैं? कृष्ण करते हैं क्या? नहीं, विष्णु जी करते हैं। विष्णु में भी शिरोदक्षाई विष्णु जो है, शिरोदक्षाई नहीं, एक्चुअली शिरोदक्षाई विष्णु ही करते हैं मेजरली, सो दैट इज दैट फॉर्म। बट ये जो फॉर्म है जगन्नाथ जी का, दैट इज नॉट विष्णु, दैट इज कृष्णा, दैट इज नॉट जस्ट कृष्णा। Jagannath is not just Krishna. Jagannath is even more special than Krishna also. कैसे? जगन्नाथ जी कृष्ण से भी ज्यादा स्पेशल है। कैसे? Any guess? आप बताइए बहुत सब लोग आंसर दे रहे थे, अब देखते कौन आंसर देता है। अच्छा गेस किया। तो ये जो जगन्नाथ है, ये कृष्ण इन एक्सटेसी है। भगवान जब महाभाव में जाते हैं, महाभाव में जाते हैं, एक्सटेसी पता है ना? एक्सटेसी मतलब अनकंट्रोल्ड हाईएस्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस, एक्सटेसी। तो जनरली कृष्ण एक्सटेसी में नहीं जाते। जनरली कृष्ण हमेशा सीधे साधे नहीं, सॉरी, कृष्ण हमेशा क्या बोले अभी, हाँ हाँ हाँ, उत्साही रहते हैं, कंट्रोल्ड, हाँ कंट्रोल्ड मूड में रहते हैं, परफेक्ट वर्ड। लेकिन एक्सटेसी में हर बार कौन जाता है? डिवोटीज जाते हैं, स्पेशली राधा रानी जाती हैं, गोपियां जाती हैं। इसीलिए भगवान को भी कभी कभी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है अपने भक्तों को देख के, क्योंकि भक्त मुझसे ज्यादा आनंद में है। एक्चुअल में इस पूरी दुनिया में भगवान ज्यादा आनंद में नहीं है, भगवान से ज्यादा आनंद में उनके भक्त हैं। अभी जो गुलाब का फूल रहता है, गुलाब का फूल ज्यादा एंजॉयमेंट करता है गुलाब के फूल को देखने वाला, देखने वाला ना। तो भगवान ऑल अट्रैक्टिव हैं, लेकिन भगवान खुद के ऑल अट्रैक्टिवनेस को टेस्ट नहीं कर सकते ना। उनके सर्वाकर्षण जो क्वालिटी, उसको टेस्ट कौन करता है? भक्त करते हैं। तो असली में आनंद में कौन है? भक्त है।
अगर वो भक्त हैं तो प्रॉपरली। तो इसीलिए भगवान को भी इंफीरियोरिटी होता है, इसलिए फिर भगवान फिर भक्त के रूप में आते हैं एज चैतन्य महाप्रभु, वो टेस्ट करने के लिए कि अरे मेरे को नहीं मिल रहा, मुझे भी टेस्ट करना है, और फिर वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्णा इन द मूड ऑफ राधा रानी, सेपरेशन ऑफ कृष्णा, कृष्णा इन द विरह भाव ऑफ राधा रानी, नॉट जस्ट राधा रानी मूड। समझ रहे हैं ना? थोड़ा सा हम डीपर लेवल पे जा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु इज कृष्णा इन द मूड ऑफ राधा रानी's विरह फॉर कृष्णा। क्लियर? स्पेशली जो समय अर्ली मॉर्निंग का, बिकॉज दैट वाज हिज टाइम विद गोपीज। सो सब लोग परेशान रहते थे कि अरे कृष्ण है हमारे साथ, लेकिन वो मूड में नहीं, अपने मूड में नहीं है, वो थोड़ा खाली खाली है, थोड़ा एब्सेंट माइंडेड है, उनका मन कहीं और है, ध्यान कहीं और है। तो उनकी इच्छा थी कि हम भी थोड़ा समझे कि कृष्ण का मन कहाँ पर है और क्यों है वहाँ पे। तो उनकी इच्छा थी वृंदावन को समझने की। अभी वो लोग तो वृंदावन कभी गए नहीं थे, द्वारका में थे, तो उनकी इच्छा थी वृंदावन को समझने की। अभी वृंदावन किससे समझे हम? उसी से समझ सकते जो वृंदावन में रहा है। तो वृंदावन में कौन रहा है कृष्ण के अलावा? यशोदा मैया वृंदावन में थी, लेकिन वो द्वारका में नहीं आई थी। हाँ, रोहिणी मैया जो है वो वृंदावन में भी थी और द्वारका में भी थी। रोहिणी मैया रे, रोहिणी मैया। तो रोहिणी मैया को उन्होंने सबने रिक्वेस्ट किया, रानियों ने, उनकी पटरानियों ने, कि हमें कृष्ण की वृंदावन लीला सुनाइए, हमको सुनना है, हमको जानना है कृष्ण का मन किधर है। तो वो बोली कि ठीक है मैं सुनाऊंगी, तो लेकिन एक कंडीशन है कि कृष्ण को पता नहीं चलना चाहिए कि ये वृंदावन लीला का यहाँ पे कथा चल रहा है, रूम नंबर 24 में। कृष्ण को पता नहीं चलना चाहिए। तो कृष्ण कोई तो एक हमें सिक्योरिटी गार्ड चाहिए जो कि दरवाजे पे खड़ा रहे, और जैसे ही कृष्ण आने लगे, कृष्ण उस समय पे बाहर थे, जैसे ही कृष्ण आने लगे उनको इमीडिएटली हमें संकेत देना है, कृष्ण आ गए, आगे रिमाइंडर भेजना है उनको एंड करने के वास्ते। तो ये सेवा दी गई किसको? सुभद्रा देवी को। तो सुभद्रा देवी दरवाजे पे खड़ी हैं ऐसे पकड़ के, और अंदर कथा चल रही है, कृष्ण की वृंदावन लीला के बारे में वर्णन चल रहा है, सब लोग एकदम एक्सटेसी में हैं, सब बहुत आनंद में हैं, और कृष्ण बाहर है, कृष्ण और बलराम दे आर आउटसाइड। अभी ऐसा हो सकता है कि वृंदावन की कथा चल रही है और कृष्ण को पता ना चले? नहीं हो सकता। आप चाहे कितना भी पीए सिस्टम बंद कर दो, कृष्ण को पता चलेगा। अभी हम लोग ये जो डिस्कशन कर रहे हैं, कृष्ण को पता चल रहा है, उधर राधा वृंदावन चंद्र को पता चल रहा है। अभी वो भागते हुए नहीं आ रहे इधर क्योंकि हम लोग उस लेवल पे नहीं है, बट हो सकता है यहाँ पे प्रेजेंट हो कृष्ण, ऑफ कोर्स प्रेजेंट है ही हर जगह पे। तो कृष्ण को पता चला कि उनकी वृंदावन लीला चल रही है यहाँ पे, और वो इतने आतुर हो गए कि सब काम छोड़ के भाग के आने लग गए सुनने के लिए, क्योंकि कृष्ण की भी इच्छा होती है अपनी वृंदावन लीला सुनने की। मैंने पहले भी डिस्कशन किया, बताया था क्लास में, कि हम लोग जो भागवतम क्लास करते हैं टेंपल में, वो ऑडियंस के लिए नहीं करते, वो कृष्ण राधा वृंदावन चंद्र के लिए करते हैं, टू ग्लोरीफाई राधा वृंदावन चंद्र, उनके सुनाने के लिए करते हैं। ऑडियंस जस्ट बेनिफिट्स, बट वो कथा चल रही है राधा वृंदावन चंद्र की प्रसन्नता के लिए। तो वैसे ही ये जो कृष्ण और बलराम में दौड़ दौड़ के आने लग गए अपनी कथा सुनने के लिए, लीला सुनने के लिए, और एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। इनकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी सी बनाई थी, प्लानिंग बहुत अच्छे से बनाई थी कि वो सुभद्रा में यहाँ पे खड़ी रहेंगी और सब कुछ हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि कथा सुनते सुनते सुभद्रा मैया भी एक्सटेसी में चली गई वो भी जैसे होता है ना, कभी कभी हम कुछ कार्य करते हैं, सुन कुछ और रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो कार्य में ध्यान ही नहीं रहता हमारा। एक वीडियो देखा था मैंने बहुत पहले, पहले भी बताया था शायद मैंने, कि एक पत्नी थी, वो मोबाइल पे रील्स देख रही थी, राइट, और रील्स देखते देखते वो घर की सफाई कर रही थी, बताया मैंने। तो घर की सफाई करते करते रील्स देखते 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 पूरे मोहल्ले की सफाई कर दी उसने उसको पता ही नहीं चला। तो वैसे ही वैसे नहीं, ये तो इसका विकृत स्वरूप है, लेकिन यहाँ पे भगवान की लीला सुनते सुनते सुभद्रा मैया भी एक्सटेसी में चली गई, और उनको भी पता नहीं चला कब कृष्ण भागते हुए आए
और कृष्ण और बलराम ने जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। कृष्ण और बलराम आ गए उधर और उन्होंने अपनी लीला सुन ली, और सुनते ही वो एक्सटेसी में चले गए, सुनते ही वो महाभाव में चले गए, विरह के, अपने वृंदावन लीला की विरह में एकदम महाभाव। महाभाव पता है, समझता है ना? तो नहीं पता हम सबको महाभाव क्या होता है, बट आइडिया है थोड़ा सा। एक्चुअल महाभाव वी डोंट नो, वो हमें तभी पता चलेगा जब, हमें कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि महाभाव जो है वो सिर्फ भगवान के लिए और राधा रानी के लिए रिजर्व्ड है। हम सबको भगवान के लिए भाव हो सकता है, प्रेम हो सकता है, एक्सप्रेसी हो सकती है, लेकिन महाभाव तक कोई जीव नहीं पहुंच सकता। तो ये जो कृष्ण है ये महाभाव में चले गए, एंड दिस इज द फॉर्म। तो ये जो फॉर्म है, दैट वाज द फॉर्म ऑफ कृष्ण इन महाभाव। तो एक्चुअल में जब कृष्ण ने अपनी लीला सुनी वृंदावन की, तो उस समय उनका जो फॉर्म था, दैट इज दिस फॉर्म। उनके हाथ अंदर चले गए एक्सटेसी में, शरीर के ऊपर अलग अलग प्रकार के अष्ट सात्विक विकार बोलते हैं उसको, अलग अलग प्रकार के विकार होते हैं, सात्विक विकार मतलब एक्सटेसी के विकार। तो उनके हाथ अंदर चले गए, पैर अंदर चले गए, आंखें एकदम बड़ी हो गई, और ये सब जो भी है फॉर्म, दैट इज एग्जैक्टली द फॉर्म दैट कृष्णा टू इन एक्सटेसी। क्लियर? तो ये कोई गलती का रिजल्ट नहीं है, ये भगवान का सबसे मोस्ट एक्सटैटिक फॉर्म है, भगवान का जगन्नाथ। और बलराम जी भी सिमिलर एक्सटेसी में चले गए, इसीलिए सुभद्रा मैया के हाथ नहीं है। किसी ने ऑब्जर्व किया? जगन्नाथ जी के हाथ है, बलराम जी के हाथ है, सुभद्रा मैया के हाथ नहीं है। क्यों? क्या क्या ऐसे थे? ऐसे 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 दौड़ते हुए नहीं आई थी वो, दौड़ते हुए ऐसे कृष्ण बलराम आए थे। तो ये जो फॉर्म है ये भगवान का सबसे मर्सीफुल फॉर्म है। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आपको किसी की कृपा चाहिए, जैसे अगर आपको किसी व्यक्ति से कुछ काम बनवाना है, तब कब जाओगे? उसके बर्थडे पे, जब वो खुश है तब जाओगे, राइट? और खुशी में भी अगर वो व्यक्ति खुशी में पागल है, तब आप उससे जो मांगोगे वो दे देगा। जैसे हम लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया, हम लोग जब भगवत गीता वितरण करते हैं, तो कभी कभी हमको ऐसे लोग मिलते हैं जो नशे में रहते हैं, बियर बार वगैरह में लोग मिलते हैं। तो अगर हम अभी आप लोग सपोज इमेजिन कीजिए आप लोग भगवत गीता वितरण कर रहे हैं, और आप ऐसी जगह पे पहुंचे जहाँ पे ये है, बियर बार है, और यहाँ पे लोग पी पा के एकदम घूम रहे हैं, तो आप लोग उनका अप्रोच करोगे क्या भगवत गीता लेके? कौन कौन करेगा अप्रोच भगवत गीता लेके? कौन कौन नहीं करेगा? इतने डरते हो यार? करना चाहिए एक्चुअली, चाहे कुछ भी हो, अल्टीमेटली भगवान की अंश है ना, सबको दिखानी चाहिए भगवत गीता। ले या ना ले, एटलीस्ट देखने मात्र से उनका पवित्र शुद्धिकरण होगा। लेकिन एक एडेड बेनिफिट रहता है, हमारा एक्सपीरियंस रहा है, आप ये जो नशेड़ी लोग रहते हैं इनको अगर आप जाके दिखाते हो, देयर इज वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट दे विल टेक, क्योंकि वो अपने सुध बुद्ध में नहीं है, राइट? एंड इनफैक्ट थोड़ा सा मैंने एनालिसिस किया है इसके ऊपर रिसर्च किया है, अगर कोई व्यक्ति थोड़ा नशे में है तो वो डेफिनेटली नहीं लेगा, क्योंकि वो बोलेगा अरे क्या है भगवत गीता, मेरे को नहीं लेना देना इससे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पूरा नशे में है, ज्यादा नशे में है, तो वो डेफिनेटली लेगा। और अगर और ज्यादा नशे में है, एकदम मतलब उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो वो भगवत गीता लेगा और उसके जेब में जो आएगा सब दे देगा पूरा का पूरा डोनेशन दे देगा। तो यहाँ पे ये जो जगन्नाथ जी है, ये कृष्ण कौन से मूड में है? नशे के मूड में है, ज्यादा नशे के मूड में है, पूरे नशे के मूड में? चैतन्य महाप्रभु को हम बोल सकते हैं कि ज्यादा नशे के मूड में है, इसलिए वो कृपालु में हैं, लेकिन जगन्नाथ इज कंप्लीटली मैड इन एक्सटेसी। तो हम जैसे पागल लोगों के लिए भगवान का भी पागल वाला फॉर्म भी हमको बचा सकता है, एंड दैट फॉर्म इज जगन्नाथ। तो इसीलिए कलयुग के जो लोग हैं उनके लिए भगवान ने स्पेशली अपना जगन्नाथ का फॉर्म लिया है, मोस्ट 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 मर्सीफुल। इवन जैसे घर में भी जो विग्रह की स्थापना होती है, तो सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स रहते हैं किनके? राधा कृष्ण के विग्रह के। बहुत ज़्यादा नियम कानून बहुत एकदम पर्टिकुलर करना पड़ता है। और
चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ जी जो हैं दे आर वेरी मर्सीफुल। यस माता जी, एक्सपीरियंस है माता जी को? माता जी के घर में बड़े बड़े जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के बिक रहे हैं, बहुत सुंदर बिक रहे हैं और बहुत प्रेम से माता जी और प्रभु जी सेवा करते हैं उनकी। तो उनको कुछ नाम दिया अलग से? जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी सफिशिएंट। तो जगन्नाथ जी जो है मोस्ट मर्सीफुल फॉर्म, उनको बस आप अच्छे से खिलाओ पिलाओ, बस अच्छे से खिलाओ पिलाओ, खुश हो जाएंगे उसमें। क्योंकि जब व्यक्ति पागलपन में रहता है या विरह में रहता है, अभी पागलपन दो प्रकार का रहता है, एक खुशी से पागल, एक डिप्रेशन में पागल वैसा भी होता है। और दोनों कंडीशन में जो व्यक्ति रहता है वो बहुत ज्यादा खाता है। आपको एक्सपीरियंस होगा कि नहीं पता नहीं, बट पता होगा एटलीस्ट कि पागलपन में लोग ज्यादा खाते हैं। तो इसीलिए जगन्नाथ जी पागलपन में, जैसे जगन्नाथपुरी में, जैसे यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अर्पण करते हैं भगवान को, छोटी छोटी प्लेट में थोड़ा सा। जगन्नाथपुरी में पूरे बड़े बड़े हांडी जो रहते हैं, हांडी भर भर के आते हैं, पूरा का पूरा हांडी ऑफर होता है भगवान उनके गर्भगृह में। और पूरा का पूरा फिर बाहर आता है कहाँ पे? जगह का नाम क्या है? यात्रा निकालनी पड़ेगी जगन्नाथपुरी के। आनंद बाजार, जहाँ पे आनंद ही आनंद है, राइट? प्रसाद मॉल में सबसे ज्यादा आनंद मिलता है, राइट? इसका नाम है आनंद बाजार। तो इसीलिए जगन्नाथ जी जो है इज द मोस्ट मर्सीफुल फॉर्म। उनको आप प्रसन्न कर सकते हो सिर्फ उनका प्रसाद ग्रहण करके। एंड जो जगन्नाथ जी हैं उनको, उनके और जो अपने चैतन्य महाप्रभु हैं उनके बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध है। ऑफकोर्स दोनों ही भगवान हैं, और भगवान के दोनों फॉर्म्स के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इज श्रीमती राधा रानी इन द विरह ऑफ कृष्णा, एंड जगन्नाथ जी इज कृष्ण इन द विरह ऑफ श्रीमती राधा रानी। तो परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन है। तो इसीलिए जब हम जगन्नाथ जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें कीर्तन करना चाहिए, बिकॉज कीर्तन इज डियर टू चैतन्य महाप्रभु। कीर्तन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए अच्छे से, और अच्छे से भगवान को भोग अर्पण करके फिर ग्रहण करना चाहिए। इससे भगवान जगन्नाथ जी बहुत खुश होते हैं। सो विल स्टॉप हियर। तो होपफुली बाय हियरिंग दिस जगन्नाथ कथा, और आप लोग इंटरनेट पे बहुत सारी जगन्नाथ कथा सुन सकते हैं। बहुत सारी लीलाएं हैं, अनंत लीलाएं हैं, और बहुत रोचक लीलाएं हैं। जगन्नाथ जी बहुत एक्टिवली रेसिप्रोकेट करते हैं